پروگرام چائنا ٹوڈے میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اس منفرد پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان رامین سید۔ چین کے صدر شی جن پنگ ملک میں مسافر جیٹ طیاروں کی تیاری کے حوالے سے خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں۔ چین کے قومی دن پر ملک میں مختلف تقریبات کے انعقاد، ملکی بندرگاہوں پر کاروبار کی تیزی، لاکھوں غریب نوجوانوں کے لیے تعلیمی مواقع، دنیا کے سب سے بڑے صحرائی شمسی فارم، بدبودار دریا کے سیاحتی مقام میں تبدیل ہونے بارے رپورٹ پروگرام کا حصہ ہوں گی۔ ایک پٹی ایک شارہ منصوبے کے تحت 180 سے زائد ممالک کی مشترکہ خوشحالی کے منصوبے بارے بھی ذکر ہوگا، لیکن حسب معمول پروگرام کا آغاز کریں گے سیگمنٹ چائنا دس ویک سے، جس میں اہم خبروں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ ملکی ساختہ مسافر جیٹ طیارے C919 کی تیاری میں خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ چینی ہوائی جہازوں کی پرواز ملک کی خواہش، قوم کے خواب اور عوام کی توقعات کی عکاسی کرتی ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے چین میں مقامی سطح پر تیار کیے گئے مسافر جیٹ طیارے C919 کی تیاری کو مسلسل اہمیت دی ہے اور اعلیٰ ترین آلات کی تیاری کے شعبے میں اہم پیش رفت پر زور دیا ہے۔ شی جن پنگ نے، جو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری اور مرکزی فوجی کمیشن کے چیئرمین بھی ہیں، 30 ستمبر کو C919 کی تیاری میں شامل نمائندوں سے ملاقات کی اور اس منصوبے کی کامیابیوں کا جائزہ لیا۔ چین نے 29 ستمبر کو بیجنگ میں سول ایویشن ایڈمنسٹریشن آف چائنا سے اپنا ٹائپ سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔ شی جن پنگ نے اس موقع پر زور دیا کہ چینی ہوائی جہازوں کی پرواز ملک کی خواہش، قوم کے خواب اور عوام کی توقعات کی عکاسی کرتی ہے۔ انہوں نے پیداوار میں اضافے اور تسلسل جاری رکھنے کی کوششوں پر زور دیا تاکہ چین کو معیار کا حامل ایک طاقتور صنعتی ملک بنانے میں ٹھوس پیش رفت کی جائے۔ چینی ریاستی کونسل کی جانب سے سن 2007 میں چین میں مقامی سطح پر بڑا مسافر جیٹ تیار کرنے کے منصوبے کی منظوری کے بعد سے چینی صدر نے بڑے جیٹ لائنر کی تیاری کی نگرانی اور حوصلہ افزائی کی ہے۔ عوامی جمہوریہ چین کے 73ویں قومی دن کی مناسبت سے ملک کے مختلف صوبوں میں عوام کی جانب سے تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ صوبہ یونان، جنوبی کوانگشی چوانگ، شنگھائی میں لوگ قومی پرچم لہراتے ہوئے رقص کرتے رہے۔ کویانگ میں قومی کانگریس کو خوش آمدید کہنے کے لیے لائٹ شو کا انعقاد کیا گیا۔ چین بھر کے لوگ عوامی جمہوریہ چین کے قیام کی 73ویں سالگرہ منانے کے لیے سجاوٹ اور مختلف سرگرمیوں میں مصروف رہے، جو 1 اکتوبر کو منائی گئی۔ اس موقع پر جنوب مغربی چین کے صوبہ یونان میں تمام نسلی گروہوں کے لوگوں نے چین کا قومی پرچم اٹھا رکھا تھا اور تھیانچی جھیل کے ساحل پر خوشی سے رقص کرتے رہے۔ وسطی چین کے صوبہ ہنان کے شہر جینگ کے تائی ہانگ پہاڑوں میں 5 ستاروں والے سرخ جھنڈے ہوا کے جھونکے میں لہرا رہے ہیں۔ چین کے جنوبی کوانگشی چوانگ خود اختیار علاقے کی کاؤنٹی ووچوان کے مختلف دیہاتوں میں خاندانوں نے قومی دن منانے کے لیے قومی پرچم لہرایا۔ چین کے اقتصادی مرکز شنگھائی میں ملک کے اہم دن کی خوشیاں منانے کے لیے قومی پرچم تقریباً ہر گلی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ روشن قومی پرچموں کی سجاوٹ کے ساتھ ساتھ رنگ و روشنی کے شوز نے بھی اس تہوار کے ماحول کو عروج پر پہنچا دیا ہے۔ چین کے جنوب مغربی صوبہ کوئی چھاؤ کے شہر کویانگ میں 1 اکتوبر کو قومی دن منانے اور کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی 20ویں قومی کانگریس کو خوش آمدید کہنے کے لیے ایک لائٹ شو منعقد کیا گیا، جس سے رات کے وقت شہر کا آسمان جگمگا اٹھا تھا۔ رواں برس جنوری سے اگست تک چین کی بندرگاہوں نے 19 کروڑ TEU یعنی 20 فٹ کے مساوی کنٹینرز کا انتظام سنبھالا۔ اس عرصے کے دوران مجموعی طور پر 10.25 ارب ٹن کی تیار شدہ مصنوعات ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجی گئیں۔ بندرگاہوں کی ڈیجیٹلائزیشن کا عمل بھی جاری رہا۔ چینی وزارت ٹرانسپورٹ کی طرف سے 29 ستمبر کو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق جنوری سے اگست کے عرصے میں مجموعی طور پر 10.25 ارب ٹن تیار شدہ مصنوعات کے ساتھ ابتدائی 8 ماہ کے دوران چین بھر کی بندرگاہیں مصروف عمل رہیں۔ جنوری سے اگست تک بندرگاہوں نے 19 کروڑ TEU یعنی 20 فٹ کے مساوی یونٹس کنٹینرز کا انتظام سنبھالا، جو سال بسال 4.1% زیادہ ہے۔ اس دوران چین نے کارگو ہینڈلنگ کی صلاحیت میں عددی ترقی کے ساتھ بندرگاہوں کی ڈیجیٹلائزیشن میں بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کی ہے۔ شمالی چین کی تھیان چین میونسپلٹی میں تھیان چین کی بندرگاہ کے سمارٹ کنٹینر ٹرمینل کے سی سیکشن کو اب ہوا سے پیدا ہونے والی ماحول دوست بجلی کی مدد حاصل ہے، جس سے توانائی کی پیداوار اور استعمال میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کا 0 اخراج ممکن بنایا جا رہا ہے۔
जदीद 5G टेक्नोलॉजी और पाइतो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से चलने वाले कुल 76 स्मार्ट उफ़क़ी नकलो हमल के हामिल रोबोट दुनिया के पहले स्मार्ट जीरो कार्बन डॉक पर कंटेनर्स की आमद-ओ-रफ्त में भी मदद फराहम कर रहे हैं। लियाओनिंग को माजी में चीलिन और हेइलुंगजियांग के साथ मुनफरद बख्श सूबों में शुमार किया जाता था। साल 1978 के बाद से चीन ने इस्लाहात और खुलेपन की पॉलिसी का आगाज किया तो इन इलाकों के मुताबिकत में कमी देखने में आई। मकामी हुकूमतें और कारोबारी इदारे सनअती तंज़ीम नौ और इख्तिरा में भरपूर कोशिशों में मसरूफ़ हैं। चीन के शुमाल मशरकी सूबा लियाओनिंग में, जो कभी चीन का एक अहम सनती मरकज था, बहुत से पैदावारी इदारों की मदद से आला दर्जे की पैदावार और जिद्दत तराजी को फरोग देने की कोशिशों को तेज किया जा रहा है। लियाओनिंग में माजी में शुमाल मशरकी सूबों शीलिनिन और हेइलुंगजियांग के साथ मनफियत बख्श सूबों में शुमार किया जाता था और ये कभी चीन के सबसे बड़े सनती मराकज की फहरिस्त में शामिल रहा है, जहाँ बहुत से रिवायती सरकारी भारी सनत के इदारे कायम थे। साल 1978 के बाद से चीन ने इस्लाहात और खुलेपन की पॉलिसी का आगाज किया तो इन इलाकों की मसाबकत में कमी देखने में आई। कई साल से ये खित्ता अपनी मईशत की बहाली और मुल्क में सनतकारी का गहवारा होने का फख्र दोबारा हासिल करने की राहें तलाश करने में मसरूफ है, जिसके तहत मकामी हुकूमतें और कारोबारी इदारे सनती तंजीम नौ और इख्तिरा में भरपूर कोशिशों में मसरूफ हैं। डिजिटाइजेशन, ऑटोमेशन और स्मार्ट टेक्नोलॉजीज के पस मंजर के साथ ज़हीन पैदावार, कम अफरादी कुव्वत और बगैर पायलट की सरगर्मियाँ पैदावारी शोबे की तरक्की के नागुज़ीर रुझानात हैं। जुनूबी शहर शुहाई में एशिया की पहली 300 मीटर गहरे पानी की जैकेट हाची-1 ने काम का आगाज कर दिया, जिसे चीन में गहरे पानी में तेल और गैस की तलाश में अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। गहरे पानियों में तेल और गैस की पैदावार लाखों टन से तजावुज कर चुकी है, जो कौमी तवानाई की सलामती के लिए एक अहम जमानत है। चीन ने गहरे पानी में तेल और गैस की तलाश में गुज़श्ता दिहाई के दौरान तारीखी कामयाबियां हासिल की हैं और साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में सुरत के साथ तरक्की की है, जिसने मुल्क के वसी समुद्रों में तेल और गैस के ज़खायर की तलाश के लिए इम्कानात को मजीद रोशन कर दिया है। चीन में तैयार करदा एशिया की पहली 300 मीटर गहरे पानी की जैकेट हाची-1 ने 3 अक्टूबर को चीन के जुनूबी शहर शुपाई के साहली इलाकों में काम का आगाज कर दिया, जिससे मुल्क के गहरे पानियों में तेल और गैस की तलाश में एक संगे मील की हैसियत से पेशरफ्त की है। साल 2012 में चीन की पहली आजादाना तौर पर डिजाइन और तैयार की गई छठी नस्ल की नीम आबदोज अल्ट्रा डीप वाटर ड्रिलिंग रिग ने काम का आगाज किया और फिर 2021 में चीन के पहले खुदकार अल्ट्रा डीप वाटर गैस फील्ड शनहाई ई हाउ नंबर 1 ने पैदावार शुरू कर दी। गहरे पानियों में तेल और गैस की पैदावार लाखों टन से तजावुज कर चुकी है, जो कौमी तवानाई की सलामती के लिए एक अहम जमानत है। चीन गुज़िश्ता दहाई में बेहतर अंदाज में तालीम याफ्ता हुआ है। साल 2010 और 2020 के दरमियान मुल्क में नाख्वानदगी की शरह 4% से कम होकर 2.7% से नीचे आ गई है। 2012 से अप्रैल 2021 तक 15,40,000 से ज़ायद गरीब तलबा को आला तालीम फराहम की गई। चीनी वजारत तालीम के मुताबिक गुज़श्ता दिहाई में चीन ने तालीमी हुसूल की आला सतह, ज़्यादा जामियत और तलबा के लिए इंतखाब की वसी गुंजाइश फराहम की है। चीन गुज़श्ता दिहाई में बेहतर अंदाज में तालीम याफ्ता हुआ है। साल 2010 में औसत उम्र के चीनी मुलाजमीन ने तकरीबन 9 साल तालीम हासिल की, जबकि गुज़श्ता साल के आखिर तक ये तादाद तकरीबन 11 साल से ज़ायद रिकॉर्ड की गई। साल 2010 से 2020 के दरमियान मुल्क में नाखानदगी की शरह 4% से कम होकर 2.7% से नीचे आ गई। हर बच्चे के लिए मसावी और मयारी तालीम फराहम करने की गरज से चीन ने सन 2012 से अप्रैल 2021 तक 15,40,000 से जायद गरीब तलबा को आला तालीम फराहम की है। इनमें से बहुत से तलबा अपने खानदानों में कॉलेज की डिग्री हासिल करने वाले अव्वलीन नौजवान बन चुके हैं। इस दौरान खुसूसी तालीम के स्कूलों में जाने वाले माजूर तलबा की तादाद सन 2012 में 65,700 से बढ़कर सन 2021 में 1,49,100 रिकॉर्ड की गई। चीनी खलाई मिशन में पहली बार हांगकांग और मकाओ के उम्मीदवारों को भी मौका फराहम किया जाएगा, जिन्हें मुस्तकबिल के इंसान बरदार खलाई मिशन में पेलोड माहिरीन के तौर पर भर्ती किया जाएगा।
چین کی انسان بردار خلائی ایجنسی کے مطابق مستقبل کے انسان بردار خلائی مشنز میں شامل ہونے کے لیے پے لوڈ ماہرین کے عہدوں پر پہلی بار ہانگ کانگ اور مکاؤ کے امیدواروں کو بھی موقع فراہم کیا جائے گا۔ CMSA کے مطابق چین میں مستقبل کے انسان بردار خلائی مشنز میں شامل ہونے کے لیے خلابازوں کے چوتھے بیچ کے انتخاب کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ اس دوران 7 سے 8 پائلٹ سمیت 12 سے 14 امیدواروں کا انتخاب کیا جائے گا، جبکہ انجینئرز کے ساتھ ساتھ 2 پے لوڈ ماہرین کا بھی انتخاب ممکن بنایا جائے گا۔ ہانگ کانگ خصوصی انتظامی علاقے کی حکومت نے انوویشن، ٹیکنالوجی اور انڈسٹری بیورو کے مستقل سیکرٹری ایڈی مارک تاک وائی نے کہا کہ مقامی حکومت 6 سے 27 اکتوبر تک پے لوڈ ماہرین کے ابتدائی انتخاب کا اہتمام کرے گی۔ ابتدائی انتخاب کے بعد اگلے مرحلے میں انتخاب کا کام مرکزی حکومت کے متعلقہ محکمے سر انجام دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بنیادی انتخاب 11 مقامی جامعات، 5 سرکاری تحقیقی مراکز، ہانگ کانگ پروڈکٹیوٹی کونسل، سائبر پورٹ اور سائنس پارک میں قائم سائنسی تحقیقی اداروں یا کاروباری اداروں، سرکاری محکموں اور اسپتالوں کی انتظامیہ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اندرونی منگولیا کے صحرائے خوبوچھی میں دنیا کا سب سے بڑا صحرائی شمسی فارم واقع ہے۔ اس شمسی فارم کی تعمیر کا آغاز 2018 میں 30 لاکھ سے زائد شمسی پینلز کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اس سے سالانہ تقریباً 20 لاکھ گھرانوں کی ضروریات پوری ہوں گی۔ شمالی چین کے اندرونی منگولیا خود اختیار علاقے کے صحرائے خوبوچھی میں واقع شمسی فارم، جو دنیا کا سب سے بڑا صحرائی شمسی فارم ہے، سن 2030 تک کاربن کے اخراج کو عروج پر پہنچانے اور سن 2060 تک کاربن کی غیر جانبداری کے حصول کے لیے چین کے سبز ترقیاتی اہداف کے حصول میں مدد فراہم کر رہا ہے۔ چین کے اندرونی منگولیا خود اختیار علاقے میں تالا دبینر پر واقع لیڈ فرام دی فرنٹ نامی یہ شمسی فارم صحرائے خوبوچھی میں قائم کیا گیا ہے، جو چین کا 7واں بڑا صحرا ہے۔ اس شمسی فارم کی تعمیر کا آغاز سن 2018 میں 30 لاکھ سے زائد شمسی پینلز کے ساتھ کیا گیا تھا، جبکہ مستقبل کے توسیع کے منصوبے کے تحت اس کی پیداواری صلاحیت 4 ارب کلو واٹ گھنٹہ سالانہ بجلی تک پہنچائی جائے گی، جس سے ہر سال تقریباً 20 لاکھ گھرانوں کی ضروریات پوری ہوں گی۔ چائنا اسٹیٹ کنسٹرکشن کے پروجیکٹ سپروائزر یو ہاؤ وی آغاز ہی سے اس شمسی فارم پر تعینات ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلا کام زمین کو برابر کرنا تھا۔ شمسی فارم کے لیے ڈھلان 15 ڈگری سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ تعمیراتی ٹیم شمسی فارم کی تعمیر آگے بڑھاتے ہوئے بہت سے چیلنجز پر قابو پانے میں کامیاب رہی۔ دریائے زرد کا طاس چینی تہذیب کی جائے پیدائش ہے۔ یہ چینی قوم کے ابتدائی آباء و اجداد کی اہم سرگرمی کا علاقہ ہے۔ ایک جدید تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ دریائے زرد نے قدیم زمانے سے چینی لوگوں کی پرورش کی اور چینی تہذیب کی ترقی کا مشاہدہ کیا۔ چین کے وسطی صوبہ ہنان میں آثار قدیمہ کے مطالعے میں پیش رفت کے ساتھ مزید دریافتوں نے اس امر کے انکشاف میں مدد فراہم کی ہے کہ چین میں مدر ریور کے نام سے مشہور دریائے زرد نے قدیم زمانے سے چینی لوگوں کی پرورش کی اور چینی تہذیب کی ترقی کا مشاہدہ کیا ہے۔ دریائے زرد کا طاس چینی تہذیب کی جائے پیدائش ہے۔ یہ چینی قوم کے ابتدائی آباء و اجداد کی اہم سرگرمی کا علاقہ ہے۔ ایک مہذب معاشرہ بننے کے بعد تقریباً 2070 قبل مسیح سے 1100 عیسوی تک شیا، شانگ اور چھاؤ خاندانوں کے دارالحکومتوں اور شمالی سونگ خاندان تک چھن اور ہانگ خاندان کے دارالحکومت بھی دریائے زرد کے طاس میں قائم ہوئے۔ ہزاروں سال سے دریائے زرد کی ثقافت چینی قوم کا اہم سیاسی، اقتصادی، فوجی اور نظریاتی مرکز رہی ہے۔ چین کے قدیم ترین خاندان شیا نے اپنا دارالحکومت ہنان کے شہر لو آؤ یانگ میں ارلی تھاؤ کے مقام پر قائم کیا اور یہ 3800 سال قدیم ہو سکتا ہے۔ جنوب مغربی چین کے تبت خود اختیار علاقے کی دیکھ بھال کے باعث بند می توک کاؤنٹی کے لیے دوسری گزرگاہ کا مرکزی حصہ 8 سال کی تعمیر کے بعد مکمل کر لیا گیا، جس سے سفر کا دورانیہ 12 گھنٹے سے کم ہو کر 4 گھنٹے تک رہ جائے گا۔ جنوب مغربی چین کے تبت خود اختیار علاقے کی دیکھ بھال کے باعث بنمی توک کاؤنٹی کے لیے دوسری گزرگاہ کا مرکزی حصہ 1 اکتوبر کو 8 سال کی تعمیر کے بعد مکمل کر لیا گیا، جس سے ہمالیہ کی گہرائی میں دور افتادہ کاؤنٹی میں ایک لوپ روڈ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ می تاؤ کاؤنٹی کی دوسری گزرگاہ نینگ چھی شہر میں پھات ٹاؤن شپ کو منسلک کرنے والی 67.22 کلومیٹر طویل شاہراہ ہے۔ نئی شاہراہ کے گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے کھلنے کے بعد نینگ
चेंगची और मीतौग काउंटी के शहर को बाहम मुंसलिक करने वाली सड़क की लंबाई 346 किलोमीटर से कम करके 180 किलोमीटर कर दी जाएगी, जिससे सफर का दौरानिया 12 घंटे से कम करके 4 घंटे तक सिमट जाएगा। बीजिंग के जिले छाओयांग में वाक़ई दरिया लियांग बेहतरीन तफरीही मकाम बन चुका है। माजी में ये दरिया एक बदबूदार नाले में तब्दील हो गया था, जिसे मुकम्मल तौर पर तब्दील करके रंगो नूर का मरकज बना दिया गया है। सयाह यहाँ बहरी जहाज की सैर से भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। बीजिंग में एक दरिया जिसकी बदबू को इंतहाई नागवार तस्वुर किया जाता था, तब्दीली के बाद तफरीह के लिए एक मसरूफ मकाम बन चुका है, जिससे रात के वक्त मकामी मईशत को फरोग हासिल हुआ है। बीजिंग के जिला छाओयांग में दरिया लियांग मा मकामी लोगों और सयाहों के लिए बेहतरीन मकामात में से एक बन गया है। तब्दीली के बाद ये इलाका पैदल चलने वालों के लिए खुली राहदारियों के साथ 8 लाख मुरब्बा मीटर तक वसी हो चुका है। रात के वक्त दरिया के किनारों पर मौजूद इमारतों में रोशनी होने पर यह तमाम इलाका खाबीदा हो जाता है। दरियाए लियांग मा पर तफरीही प्रोग्राम्स में से एक रात को बहरी जहाज पर सैर करना है, जिसमें सयाह टेक्नोलॉजी और आर्ट के हल्के फुल्के शो से लुत्फअंदोज हो सकते हैं। इस बहरी जहाज का किराया 89 युआन यानी 12.51 अमरीकी डॉलर से लेकर 259 युआन यानी 36.4 अमरीकी डॉलर फी शख्स तक है, जिसमें हस्बे ज़रूरत मजीद सहूलियात फराहम की जाती हैं। सयाह दरिया के किनारे पर रात के खूबसूरत मनाजिर, नफासत और धीमी हवा से लुत्फअंदोज हो सकते हैं। चीन के मशरक़ी सूबे चियांगशी के शहर चियोचियांग में आलूदा पानी को ठिकाने लगाने के प्लांट के ऊपर एक खूबसूरत पार्क तामीर किया गया है। इस प्लांट में इस्तेमाल की गई जदीद सहूलियात और टेक्नोलॉजीज की बदौलत यहाँ से ना तो बदबू खारिज होती है और ना ही शोर होता है। चीन के एक मशरकी शहर में आलूदा पानी को ठिकाने लगाने के प्लांट के ऊपर एक खूबसूरत पार्क तामीर किया गया है, जिसमें पानी को रिसाइकिल करने और जदीद अंदाज में रिहाइश का एक अच्छा माहौल फराहम करने का रास्ता तलाश किया गया है। चीन के मशरकी सूबा चियांगशी के शहर चियोचियांग शहर में शुआंगशी, जिसका चीनी जबान में मतलब 2 दरिया है, के दलदली पार्क दरियाओं और नकासी के गलत इंतजाम की वजह से बदबूदार मकामात कहलाते थे, लेकिन अब आलूदा पानी को ठिकाने लगाने के 12,000 मुरब्बा मीटर वसी ज़ेरे ज़मीन प्लांट ने यहाँ सब कुछ बदल कर रख दिया है। इस प्लांट में इस्तेमाल की गई जदीद सहूलियात और टेक्नोलॉजीज की बदौलत यहाँ से ना तो बदबू खारिज होती है और ना ही शोर जैसी आवाजें। सीवरेज को ठिकाने लगाने का पूरा अमल मुकम्मल तौर पर बंद माइक्रो नेगेटिव प्रेशर के हामिल आलात में चीन में जदीद तरीन बायोलॉजिकल ड्यूडराइजेशन के तरीकाकार के तहत सरंजाम दिया जाता है, जो बदबू पैदा करने वाले पानी को जमा करता है और फिर अखराज के मयार पर पूरा उतरने के बाद इसे खारिज कर देता है। बरसों की मुसलसल कोशिशों से इस शहर में यौमिया तकरीबन 70,000 क्यूबिक मीटर आलूदा पानी के बराह रास्त अखराज में कमी वाक़ हो चुकी है। 300 किलोमीटर से ज्यादा पाइप नेटवर्क तश्कील दिया गया है और शहर के आलूदा पानी को ठिकाने लगाने की सलाहियत में 1,45,000 टन यौमिया इजाफा किया जा चुका है। यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे सेगमेंट न्यू विजन के साथ। देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। चीन ने 180 से ज्यादा ममालिक और बैनुल अक़वामी तंजीमों को बाहम मुंसलिक करने के प्लेटफॉर्म एक पट्टी एक शाहराह के इक़दाम के साथ मुश्तरका मुस्तक़बिल के लिए एक खाका तैयार किया है। साल 2013 में शुरू किए गए इस मंसूबे के तहत चीन ने दुनिया भर में बहुत से बुनियादी ढांचे तामीर करने के मंसूबे तश्कील दिए हैं। चीन ने गुज़िश्ता चंद साल के दौरान गुर्बत के खात्मे की कोशिशों के जरिए मुल्क में तकरीबन 10 करोड़ अफराद को गुर्बत से निजात दिलाई। अब वो दीगर ममालिक को भी अपने तजुर्बात से मुस्तफ़ीद कर रहा है। चीन ने 180 से ज़ायद ममालिक और बैनुल अक़वामी तंजीमों को बाहम मुंसलिक करने के प्लेटफॉर्म एक पट्टी एक शाहराह के इक़दाम के साथ मुश्तरका मुस्तक़बिल के लिए एक खाका तैयार किया है। चीन ने आलमी सतह पर रोनमा होने वाली बड़ी तब्दीलियों का सामना करते हुए हमेशा तरक्की को मरकजी आलमी मसला करार दिया है। साल 2013 में शुरू किए गए एक पट्टी एक शाहराह के इक़दाम के लिए ताउन के फ्रेमवर्क के अंदर चीन ने दुनिया भर में बहुत से बुनियादी ढांचे तामीर करने के मंसूबे तश्कील दिए हैं। मिसाल के तौर पर
जुनूबी मोज़िम्बिक में मापुतू कातिम्बे नामी पुल को बाज़ाब्ता तौर पर गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए नवंबर 2018 में खोल दिया गया था, जो अफ्रीका का सबसे तवील मुअल्लिक पुल बन चुका है। दुनिया के सबसे बुलंदी पर मौजूद सोलर पार्क काचरी सोलर पार्क की तनसीब का आगाज सितंबर 2020 में किया गया। चीनी फाइनेंसिंग और टेक्नोलॉजी से मुकम्मल किया गया ये सोलर पार्क जनूबी अमेरिका में अपनी नौयत के सबसे बड़े मंसूबों में से एक है। चाइना लाओस रेलवे भी, जो चीन के सूबा यूनान में खुनमिंग शहर को लाओस के दारुल हुकूमत वियंतियाने से मुंसलिक करती है, चीनी सरमायाकारी से तामीर की गई थी। एक पट्टी एक शाहरा के साथ, जिसका मकसद तिजारती और बुनियादी ढांचे का एक ऐसा नेटवर्क तश्कील देना है जो अशिया को यूरोप और अफ्रीका से कदीम तिजारती रास्तों के साथ मुंसलिक करता है। चीन गुर्बत के खात्मे के हवाले से अपने तजर्बात से दुनिया के दीगर ममालिक को भी आगाह कर रहा है। रवांडा के दारुल हुकूमत की गाली में दम्मास तविज़ीज़ू खुम्बियों के फॉर्म की देखभाल में मसरूफ हैं। साल 2012 में चीनी माहिरीन ज़राअत ने 5000 से जायद मकामी ज़रई तकनीकी माहिरीन और किसानों को मशरूम की काश्त की तरबियत फराहम की है। दम्मास उनमें से एक हैं। दम्मास का कहना है कि जब उन्होंने अपने कारोबार का आगाज किया तो उन्हें वाफर आमदनी हासिल हुई। फिर वो जायदाद खरीदने की तरफ मुतवज्जो हुए और उन्होंने नए घर भी तामीर किए। अब उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। आज रवांडा में 3500 से जायद मकामी खानदान खुम्बी की काश्त में मसरूफ हैं। उनकी सालाना आमदनी 2 गुना या 3 गुना हो चुकी है। खुम्बी की काश्त की आसान और अमली टेक्नोलॉजी एक पट्टी एक शाहराह के ताउन से मुंसलिक 100 से जायद ममालिक में जड़ पकड़ चुकी है, जिसे अवाम को गुर्बत से निजात दिलाने के लिए खुशकिस्मती का मरकज करार दिया जा रहा है। चीन ने गुज़श्ता चंद साल के दौरान गुर्बत के खात्मे की कोशिशों के जरिए मुल्क में तकरीबन 10 करोड़ अफराद को गुर्बत से निजात दिलाई, जिनमें नए कारोबार, सयाहत और माहौल दोस्त मंसूबों की तरक्की शामिल है। अब चीन दूसरे ममालिक और खित्तों को अपने तजर्बात से आगाह कर रहा है जो इन्हीं मसाइल का सामना कर रहे हैं। आलमी बैंक की एक रिपोर्ट में अंदाजा लगाया गया है कि साल 2030 तक एक पट्टी एक शाहरा में हिस्सा लेने वाले ममालिक के दरमियान दो तरफा तिजारत में 2.8% से 9.7% तक और आलमी तिजारत में 1.7% से 6.2% के दरमियान इजाफा मुमकिन हो सकेगा। ये तरक्की दुनिया भर में 76 लाख अफराद को इंतहाई गुर्बत की हालत से और 3 करोड़ 20 लाख लोगों को मुअत्तदिल गुर्बत से निकालने में मुअव्विन साबित होगी। हकीकी शराकतदार अपने मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए शाना बशाना खड़े होते हैं। गुज़श्ता दहाई में सहराए गोबी से लेकर बुलंदो बाला पहाड़ों और गहरी वादियों तक, सतह मुर्तफा पामीर से लेकर बर्रे आज़म अफ्रीका तक, चीन बहुत से खित्तों और इलाकों में नुमाया तब्दीलियां लेकर आया है और अपनी तरक्की का फल बाकी दुनिया के साथ बांट रहा है। दुनिया भर में बेशुमार लोगों की तकदीर बदल दी गई है। अब वो नई उम्मीदों के साथ एक बेहतर मुस्तकबिल की जानिब बढ़ने के काबिल हो चुके हैं। ये कहानी चाइना मीडिया ग्रुप की कसीरुल लिसानी फीचर फिल्म डिकोडिंग द पास्ट 10 years का हिस्सा है। 30 सितंबर से गुज़श्ता दहाई के दौरान चीन की तब्दीलियों और तरक्की की अक्कासी करने वाली ये फिल्म अंग्रेजी, हिस्पानवी, फ्रांसीसी, अरबी और रूसी जबानों के अलावा CGTN के दीगर चैनल्स के जरिए नशर की जाएगी। चीन में मोबाइल होम का तस्वुर तेजी से फरोग पा रहा है। मोबाइल होम एक मकबूल तफरीह सरगर्मी बन चुके हैं। मोबाइल होम खरीदे भी जा सकते हैं और किराए पर भी दस्तयाब हैं। ये RV गाड़ियां खास तौर पर रिटायर्ड अफराद की पसंदीदा होती हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जूसी और आपने मोबाइल फ़ोन तो इस्तेमाल किया है, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगी मोबाइल होम। मोबाइल होम में सफ़र का तजुर्बा कैसा है। तो आज मैं RV ड्राइविंग करने का एक सीनियर परचोज रुकन के साथ RV गाड़ी में सफ़र करूंगी और आइए मेरे साथ चलें। इस वक्त चीन में RV गाड़ी के जरिए सेल्फ ड्राइविंग टूर लोगों में एक मकबूल सफरी सरगर्मी बन चुकी है। जब आप अपने घर वालों के साथ RV गाड़ी चलाते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आप अपना पूरा घर अपने साथ लेकर जा रहे हैं। ये यकीनी तौर पर ख्वाबों की दुनिया में सफर करने जैसा तजुर्बा है। आज हमारे
हमारी कैंपिंग साइट है और यहाँ न सिर्फ आरवी गाड़ी किराए पर दस्तयाब है बल्कि गाड़ियाँ फरोख्त की भी जाती हैं। और अगर आपके पास आरवी गाड़ी नहीं है तो सफ़र के लिए एक आरवी गाड़ी किराए पर भी ली जा सकती है। ये वाकई बहुत अच्छा है ना। यहाँ ट्रेलर आरवी गाड़ियाँ मौजूद हैं और खुदकार तरीके से चलने वाली आरवी गाड़ियाँ भी दस्तयाब हैं। ट्रेलर आरवी इस किस्म की गाड़ी है जिसे आप अपनी कार के पीछे बांध कर ले जा सकते हैं। देखें, मेरे दोस्त आ रहे हैं। Hello， 周老师。 Hello。 你好，你好。 इस जगह न सिर्फ आरवी गाड़ियाँ किराए पर दस्तयाब हैं बल्कि यहाँ गाड़ियाँ फरोख्त भी की जाती हैं। इसके अलावा यहाँ अक्सर आरवी कैंपिंग नुमाइश का इनेकाद किया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ मुख्तलिफ इक़साम और मुख्तलिफ ब्रांड्स की बहुत सी आरवी गाड़ियाँ मौजूद हैं। अभी मैं एक ड्राइवर हूँ और एक लम्हा के बाद मैं अपने घर में आ चुकी हूँ। 这个地方呢，就是我们平时用来给房车加水的地方。 哦，यहाँ पानी की सप्लाई है। 你给它接上水就行。 哦，ये देखें, ये बहुत अच्छा है ना। 这个就再往里加水。 अभी खुला है, अभी जो आरवी गाड़ी में पानी होगा। 这么一个插头，插在插件板上就可以了。 ये बिजली के लिए वो चार्जिंग है। देखें, ये बहुत आसान है ना। ये एक लड़की भी बहुत आसान से ये हैंडल कर सकती हूँ। 我平开的，然后正常呢，我会把放在 यहाँ बहुत से सामान महफूज किया जा सकते हैं। 对。 ओके, इस तरह तो वापस कर सकते हैं और मैं कोशिश करूं। ओके, ये भी मुश्किल नहीं है। सब कुछ तैयार है। इंजन स्टार्ट करें, गाड़ी गियर में है। हम अपने पूरे घर के साथ ये जादुई सफर शुरू कर सकते हैं। एक खुशगवार मौसम, एक मुनासिब आरवी गाड़ी, एक अच्छा हम सफर और ये खुशगवार सफर सब कितना शानदार लगता है। अभी हम यहाँ कैंप लगा रहे हैं और मैं बेताबी से कैंप लगाने की मुंतज़िर हूँ। लेट्स गो। मेहनत का अमल तवीर और सब्र आज़मा होता है, लेकिन मेहनत हमेशा रंग लाती है। आज हमारा यहाँ बाहर आने का मकसद फितरत की जानिब लौटना और इससे लुत्फ़ अंदोज होने को हमेशा याद रखना है। वाह, 烧烤 BBQ。 वाह जबरदस्त। आज हम बारबेक्यू करेंगे और मैं पाकिस्तानी चाय भी पकाऊंगी।
आज का ये दिन खुशगवार सफर के नाम और दोस्तों के नाम है, इसलिए मजेदार खाने तो लाजमी है। पाकिस्तानी मिल्क टी 哇，来尝一尝。 दुनिया में आरवी गाड़ी खरीदने वालों की अक्सरियत रिटायर्ड बुजुर्ग शहरी हैं, क्योंकि उनके पास सियाहत का वक्त भी है और मालियाती वसाइल भी मैसर हैं। लेकिन चाइना में आरवी गाड़ी के जरिए सफर करने के लिए बरहपा कोई शर्त नहीं और न ही इतने तवील इंतजार की जरूरत है। ज्यादातर नौजवान जैसा कि सोशल मीडिया शख्सियात और आरवी ट्रैवल ब्लॉगर्स भी आरवीज खरीदने का इंतखाब करते हैं। वो अपने आरवी ट्रैवल को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं, दिलचस्प वीडियोस बनाते हैं और इसके जरिए सफर के साथ साथ आमदनी भी हासिल कर सकते हैं। आरवी ट्रैवल उनके जिंदगी गुजारने का एक नया और दिलचस्प तरीका बन चुका है। मेरे ख्याल में आरवी गाड़ियों में रहना नौजवानों के लिए बड़ा अहम तजुर्बा है। ये जिंदगी को बहुत ज्यादा पामानी बना देता है। आप महसूस करते हैं कि जिंदगी ज्यादा पुरजोश हो गई है। जवानी का अरसा 10 से 20 साल पर मुहित होता है। मैं अपनी यादों को मजीद खुशगवार बनाना चाहता हूँ। मुझे लगता है ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। खूबसूरत मनाजिर, मजेदार खाना और कुदरत के दीगर बेशुमार हसन रंग, सभी कुछ तो यहाँ है। आरवी सफर के दौरान आप न सिर्फ अपना मनपसंद खाना ला सकते हैं, बल्कि गाड़ी में सो सकते हैं। अपना घर और घर वाले भी हमराह ला सकते हैं। देखें, जिंदगी का ये दिलचस्प रंग कितना अजीब है कि आपने अपने घर को पहियों पर मुंतकिल कर दिया है। घर अगरचे बड़ा नहीं है, लेकिन ये बहुत पुरसुकून है। इस घर से दुनिया की खूबसूरती को अपने घर के बाग में सजाया जा सकता है। आरवी सफर आपकी जिंदगी और ख्वाब दोनों की एक दिलकश तस्वीर पेंट कर सकता है, जिसको आप अपनी रूह तक मुकम्मल तौर पर उतरते हुए महसूस कर सकते हैं। यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे सेगमेंट चाइना ट्रैवल के साथ और सैर करेंगे तिब्बत की द्योमालाई वादी की। देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। सेगमेंट चाइना ट्रैवल में इस हफ्ते हम शियांगयांग की ईशान काउंटी की सैर करेंगे। शियांगयांग जुज़वी तौर पर गर्म, मरतूब और मानसून बारिशों का हामिल खित्ता है। यहाँ बारिश की फरावानी के बायस हयातियात और नबातात का तनव्वुर ज़्यादा है। शियांगयांग की खास बात उसके हरे भरे खेत खलियान हैं। चीन के अजीम दरियाए ज़र्द के किनारे वाक़े इस जादुई खित्ते की सैर करवाते हैं। शियांगयांग जुज़वी तौर पर गर्म और मानसून का हामिल खित्ता है, जो 112 डिग्री मशरिकी तूलुल बलद और 31 डिग्री शुमाली अर्जुल बलद में वाक़ है। यहाँ बारिश और बुलंद दर्जा हरारत की बदौलत नबातात और हैवानात का तनो तेजी से परवान चढ़ता है। इस तरह ज़राअत में जिद्दत तराजी भी इस सरजमीन की हरियाली में जम होना शुरू हो चुकी है। मौसम गर्मा के वस्त में यहाँ नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी होती है। शियांगयांग की ईचांग काउंटी के मकीन पांगचंग यहाँ चावल की फसल को देखने के लिए सुबह सवेरे ठंडे मौसम से फायदा उठाते हैं। मेरा नाम पांचिंग है और मैं एक किसान हूँ। हमने इस साल 800 एकड़ से ज्यादा अराजी पर चावल की फसल लगाई है। जड़ी बूटियां इंतहाई बुरे तरीके से ग़िज़ाई अज्जा के महलूल को जज्ब कर लेती हैं और कीड़े चावल के पौधों और पत्तों को बिला खौफ खा जाते हैं। इस वक्त एक खास ग्रोह के एहलकारों की आमद का वक्त हो चुका है।
चलो बतखों को खोल दिया जाए। बतखों का ये शोर मचाता झुंड लाओपान के चावल के खेतों में माहौलियात का अहम हिस्सा है। बतखें खेतों में तैरती हैं, जड़ी बूटियां साफ करती हैं, कीड़ों को भगा देती हैं और एक दिन में चावल के खेतों को नयापन दे देती हैं। इनकी कारकर्दगी मशीनरी की तरह है और बतखों से चावल को नुकसान भी नहीं पहुंचता। बतख ही क्यों, 1 जुलाई के आसपास बतखों को खेतों में छोड़ दिया जाता है क्योंकि उस वक्त चावल के पत्ते सख्त हो रहे होते हैं। बतखों के लिए ये माहौल मौजू होता है। बतखें चावल को नुकसान भी नहीं पहुंचाती। यहाँ घास और कीड़े ज्यादा हो रहे हैं। आइए वापस चले और कुछ झींगा मछली पकड़े। जंगली बतखों के मुकाबले में झींगा मछली चावल के खेतों में अफजाइश के लिए ज्यादा मौजू है, जहां अभी अभी जवान पत्ते उगे हैं। डबल चिमटे पानी के अंदर बिल्कुल ठीक काम करते हैं। वो झाड़ियों को हटाने और चावल के खेत के पानी के मयार को बेहतर बनाने में मसरूफ हैं। पौधों की नशोनुमा का कानून, जानवरों की मखसूस खूबियां और जुग्राफियाई आबो हवा फार्म के अमूर को चलाने के लिए एक मुआवन हम आहंग माहौल तश्कील देते हैं। इस वक्त हमारा ये माहौलियाती मॉडल सहजहती अफजाइश पर मबनी है, जिसमें रोजाना चावल और झींगों की नशोनुमा का मुशाहिदा और हिसाब किताब के बाद ऐसे वक्त का तयन करना शामिल है कि ये बतखें खेत में कब जा सकती हैं। यूं एक मरतूब माहौल वजूद में आता है। दानिशमंदी, साइंस और टेक्नोलॉजी और शियांग के किसानों की ज़राअत से मोहब्बत यहाँ की जिंदगी को परवान चढ़ाती है। सुबह सवेरे काम का आगाज हो चुका है और शियांग के लिए भी खेतों के मुआयने का काम सुबह सवेरे शुरू हो जाता है। मवेशियों की अच्छी तरह से देखभाल की जाती है तो मवेशी और उनकी देखभाल करने वाले अपने पसंदीदा सेशन से भी महजूज होते हैं, जो शुरू होने वाला है। आगाज़ में मवेशियों की अफजाइश बेलुत्फ और बोरियत से भरपूर महसूस हुई, लेकिन अब 10 साल से ज़ायद की अफजाइश नस्ल के बाद इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ती चली जा रही है और हर रोज़ बछड़ों की पैदाइश पर बहुत खुशी होती है। नौज़ायदा बछड़े ताज़ा खुशी लाते हैं और पका हुआ फल खुशी से भरा हुआ है। बहनों, उठना शुरू करें, कुछ देर में सूरज निकल आएगा। चलो चलो।
मेरा नाम मंग योंग फन है। हमें जर्द आड़ू की बेहतर अफजाइश के लिए मुनासिब आबो हवा के साथ साथ एक मुनफरिद जुग्राफियाई बरतरी भी हासिल है। जर्द रंग के आड़ू के पौधे लगाने के लिए मखसूस हालात अगरचे बुनियाद हैं, लेकिन काश्तकारों के लिए 3 साल तक इंतहाई एहतियात से दरख्तों की देखभाल करना जरूरी है, तभी दरख्तों पर फल आता है। पनीरी से लेकर पौधों के जड़ पकड़ने तक हमें इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। 3 साल की सख्त मेहनत मिठास में बदल चुकी है। इस मौसम गर्मा में जर्द रंग के आड़ू शेड्यूल के मुताबिक पक चुके हैं और आड़ू के काश्तकार खुश हैं, लेकिन कुछ नई परेशानियां भी दरपेश हैं। हम जर्द रंग के आड़ू के काश्तकारों को फल फरोख्त करने के लिए शहर जाना पड़ता है। बाज़ औक़ात फरोख्त महदूद होती है, बाद के मरहले में कुछ फल फरोख्त नहीं हो पाते और जमीन पर गिरकर सड़ जाते हैं और ज़ाया हो जाते हैं। ये अच्छा है, बहुत बड़ा है। इस साल श्योमंग ने शियांगयांग में बेहतरीन शोहरत के हामिल किसान टोकमा टोड को अपने फरोख्त के मसले को हल करने के लिए मदऊ किया है। टोकमा आ गए हैं, शुक्रिया। अब आड़ू की क्या सूरत हाल है? आड़ू अब बड़ी मिकदार में दस्तयाब हैं। उठाने का वक्त रहा है और फिर मैं इसे तेजी से फरोख्त करना चाहती हूँ। ठीक है, इसे तेजी से फरोख्त करना। मेरा नाम मंथाओ है। अहम बात किसानों की मदद के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल है। हम बुनियादी तौर पर ड्वेन प्लेटफॉर्म के जरिए किसानों की मदद करते हैं। हमारे अकाउंट को टोकेमा कहा जाता है। हमारे 15 लाख फैंस हैं। इंटरनेट मीडिया जैसी नई चीजें अब शियांगयांग के किसानों के लिए अजनबी नहीं रहीं। ब्लॉगर्स सार्फिन की तवज्जो हासिल करने के लिए सोशल प्लेटफॉर्म्स पर वीडियोस पोस्ट करते हैं, फिर ऑनलाइन लाइव और नाजरीन के साथ बातचीत करते हैं, जबकि नाजरीन देखने के दौरान किसी भी वक्त ऑर्डर दे सकते हैं। इसके बाद अशिया एक मौसर लॉजिस्टिक नेटवर्क में दाखिल होती हैं और फिर इन्हें जितनी जल्दी मुमकिन हो खरीदार के हाथों तक पहुंचाया जा सकता है। सेल्स चैनल को वसी करने की गर्ज से मकामी ज़री इमदादी टीमों ने सोशल प्लेटफॉर्म्स की मदद से हैरत अंगेज कामयाबियां हासिल की हैं। 3 घंटे ठीक है, 2000 से ज्यादा और 3 घंटों के अंदर हम कोशिश करेंगे। अब तक हम निस्फ साल से किसानों की मदद कर रहे हैं। 1000 हेक्टेयर से जायद रकबे पर काश्त किए गए तरबूज को हम शायद आइंदा 2 रोज तक फरोख्त करने के काबिल हो जाएंगे। एक चीज जो मुझे वाज़े तौर पर याद है वो 3.5 घंटे है और हमने 1,50,000 पाउंड शकरकंदी भी फरोख्त कर दी है। इमदादी टीम और आड़ू के काश्तकार आड़ू की फसल के पास ही बैठे हैं और फरोख्त की हिकमत अमली तैयार करते हैं। ऑनलाइन फरोख्त के लिए एक नया मखसूस मीडिया शुरू होने वाला है। फिर जल्दी करो, कम बोलो और काम ज्यादा करो। पहले वीडियोस और फिर लाइव। आज ये काम खत्म करना है। बुनियादी तौर पर मुख्तसर वीडियोस ज्यादा से ज्यादा फैंस को हमारी मसनूआत के बारे में जानने का मौका फराहम करती हैं। लाइव स्ट्रीम तेज़तर होना चाहिए, क्योंकि जब हम लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं तो हम बराह रास्त राबिता कायम कर सकते हैं और बहुत से ज़रूरी सारिफ फौरी तौर पर लाइव मसनूआत खरीद सकते हैं। इंटरनेट और ज़राअत के दरमियान गहरा तामुल इस ज़मीन को किसानों के लिए उम्मीद, सुकून और खुशहाली से भरपूर मुस्तकबिल की तहरीक में बदल देता है। माजी में जब लोग ज़री अराजी को देखते थे तो दुख से आहें भरा करते थे, लेकिन अब इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों के चेहरों पर इत्मीनान से भरपूर मुस्कुराहट देखी जा सकती है। दिल से हकीकी मुस्कुराहट, और ये वाकई इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की ताकत है। शियांगयांग के किसान वसी और अरीज जमीन पर खड़े हैं, अपनी रिवायात को पीछे मुड़कर देखते हैं, वक्त की हिकमत का भरपूर इदराक करते हैं, मुस्तकबिल की तरफ देखते हैं और लामहदूद इम्कानात का खैर मकदम करते हैं। जमीन और जिंदगी की मोहब्बत शियांगयांग की ज़राअत को मौसम गर्मा में मजीद खुशहाल बना देती है। चंद
GNN टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।